Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. We are going to talk about The Hollow Man, the poem by T.S. Eliot. T.S. Eliot was the representative poet of the 20th century, and in his poem like The Hollow Man and The Wasteland, he talked about the dilemma of the modern man. He was born in the year 1818 and passed away in the year 1965. He was not only an American British poet but also an essayist, publisher, playwright, literary and modern critic. He introduced a new style of poetry. The problem of modern life and modern men are the major themes of his poetry. He made modern men conscious of his age and dangers inherent in modern civilization. He was awarded the Nobel Prize in Literature in the year 1948 for his outstanding pioneer contribution to present day poetry. Eliot attempts to produce pure imagery and adding one image to another in such a way that his attitude and mood become clearer. In his best work like The Wasteland, The Hollow Man, Four Quatrain, Ash Wednesday, Mother in the Cathedral, and so on. The image, his own philosophy, and the music of the words that he is using are all harmoniously blended. So, till now we have discussed a lot about T.S. Eliot. Now we are going to discuss about The Hollow Man. The Hollow Man, which was written and published in the year 1925, has since become one of the most popular poems in modern history. He accomplished a blend thought, a brilliant process of using older methods of poetry, or we can say the classical method of poetry, and juxtapose them against the modern dilemma. The poem Hollow Man depicts how a man's soul can inevitably become corrupted, thus leading to the life full of emptiness, devoid of hope and meaning. He expresses deadness and despair. This poem, or rather all of his poem, is a very clear example of existential philosophy. Now I have given the introduction of the poem, The Hollow Man. Now we talk about epigraph. In this poem, we have two epigraphs. The first epigraph is Mr. Curse He Dead. This epigraph, Mr. Curse He Dead, is taken from Joseph Conrad novel The Heart of Darkness. In this epigraph, Captain Curse is a British ivory trader and he was also an example of European enlightenment. But somehow he loses his path and at last he died. The second epigraph is a penny for the old guy. Actually, it is a traditional saying where a Catholic revolutionary whose name was Fox. He conspiracy to blast the parliament, but fortunately he was arrested on 5th of November. In order to celebrate this day, the children made the statue of Fox with clay, straw, or with old cloths and fired it on 5th of November. In the same way, we are doing Ravan Dahan in India. टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट है. द टाइटल का जो सोर्स है it is taken from Rudyard Kipling poem The Broken Man and it is also taken from William Morris The Hollow Land. इसका जो टाइटल है का सोर्स जो है रुद्यार्ड किपलिंग की पोएम द ब्रोकन मैन और विलियम मोरिस का वर्क द हॉलो लैंड है. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. While writing this poem, he was highly influenced by classical writer Dante.
In this poem, from the very beginning to the end, we find the tone of despair. This poem is written in free verse and it is divided into 5 parts. It consists of 98 lines, and the last line and the last 4 lines are probably the most quoted line of any 20th century poetry. In this poem, the narrator is asking the question that what is the meaning and what is the purpose of life. Now we come to the theme of the poem. The poem records the utter hopelessness and destitution of modern life. Modern man has become worthless and hollow, as he is not making use as he is not making best use of his abilities. The modern man does not have ambition to acquire knowledge and wisdom to guide and lead others. He is doing nothing and living like a dead person. He has lost the aim of life, that is to get knowledge about God and universe. Eliot's present poem is about a group of scarecrow-like individuals who exist in the stage between life and death and suffer from a serious case of moral paralysis. The poem shows a concern for society and culture lacking in faith and morality and humanity. The society is suffering from alienation and the breakdown of communication. He believes that the humanity is suffering from the loss of faith and will. This poem also expresses about the condition which occurred after the First World War. The First World War has not only paralyzed the Western society, but it also paralyzed the mind, the soul of the Western people. There was a cultural collapse, civilization collapse, and also the human character was collapsed. In this poem, the poet also talks about the life after death. I think till now सबको चीजें clear हो चुकी हैं. Now we come to the line by line explanation of this poem. First we deal with the first section. We are the hollow men. We are the stuffed men. यहाँ पर जो वर्ड है hollow men, ये सिंबॉलिक मीनिंग देता है स्पिरिचुअल डेथ का, और स्टफ मैन जो है वो बताता है स्केयर्ड क्रो लाइक का इमेज जो है यहाँ पर एलियट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. So we are the hollow men, we are the stuffed man. The poem begins with the first person plural number. It means that the poet himself including in the group of the hollow men. पोएट जो है अपने आप को जो हॉलो मैन है उसके ग्रुप में शामिल करते हैं और कहते हैं कि वी आर द हॉलो मैन. हम क्या है? हॉलो मैन है. हम खाली हैं. खाली इन द सेंस कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है. वी आर द मैन विदाउट कल्चर, विदाउट कैरेक्टर, विदाउट पैशन, विदाउट इमोशन. हम अंदर से पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं. हमारा जो सोल है वो डेड हो चुका है क्योंकि हमारे अंदर जो है स्पिरिचुअली जो है हम पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं. वी आर द स्टफ मैन. यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोएट ने कहा है वी आर द हॉलो मैन और दूसरी जगह कहा है वी आर द स्टफ मैन. पोएट ने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स का यूज किया है. स्टफ मैन का मतलब होता है हम भरे हुए हैं. किस चीज से भरे हुए हैं? बेकार की चीजों से भरे हुए हैं. यहाँ पर एलियट जो है स्केयर क्रो का इमेज बताने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरीके से खेतों में जो है एक स्केयर्ड क्रो बनाया जाता है जो फिजिकली तो प्रेजेंट होता है बट उसके अंदर भूसे कपड़े जो है भर दिए जाते हैं. किस चीज के लिए? ताकि उससे परिंदों को जो क्या कर सके, डराया जा सके. तो पोएट यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो मॉडर्न मैन है वो फिजिकली तो प्रेजेंट है, फिजिकली तो एलाइव है, लेकिन उनका जो सोल है वो अंदर से खत्म हो गया है. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो है लाइफ इन डेथ उनका हो चुका है. Leaning together, head pieces filled with straw, alas. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम जो है
पूरी तरीके से दूसरों पर क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारी खुद की जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो चुकी है, हमारा जो पैशन है वो खत्म हो चुका है, जो हमारे अंदर टैलेंट है वो खत्म हो चुका है। हम पूरी तरीके से दूसरों पर क्या हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। हेड पीसेस फिल्ड विथ स्ट्रॉ, और जो हमारा दिमाग है जिसको कहा जाता है कि सबसे अच्छा बॉडी का पार्ट होता है, उसमें क्या हो गया है, स्ट्रॉ भर गया है, कचरा भर गया है, बेकार की चीजें भर गई है। जितनी भी अच्छी चीजें थी, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी थी, सारी चीजें जो है वो निकल गई है हमारे दिमाग से, और हमारे दिमाग में जो है सिर्फ बेकार की और कचरा चीजें भर गई है। और फिर पोएट कहता है अलास। और ये जो कंडीशन है, ये जो डिजॉर्टिंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो हम नहीं कह सकते, ये जो मॉडर्न मेन है उसकी जो कंडीशन है, उससे पोएट जो है बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। इसीलिए पोएट जो है अलास यूज कर रहा है, कह रहा है कि मॉडर्न मेन जो है एक्चुअली दे हैव द फिगर ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन जो ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसमें पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और इस कंडीशन की वजह से जो है पोएट बहुत ही दुखी है, और वो अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए अलास वर्ड का यूज कर रहे हैं। Our dried voices when we whisper together are quite meaningless. Dried voices का मतलब होता है voice cannot be heard. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि वी आर द हॉलो मैन, हम जो क्या है हॉलो मैन है, एंड वी आर ट्राइंग टू स्पीक, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर कन्वेइंग नथिंग, बट हम कुछ भी कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। And he is also telling that they talk without saying anything meaningful. वो अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पा रहे, वो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बोल पा रहे, इसीलिए उनकी आवाज में क्या है, एक फुसफुसाहट है। And they are afraid that someone will hear them, और वो अंदर से क्या है, बिल्कुल ही डरे हुए हैं। They do not have the ability to listen or deliver it to others. उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो सपने हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी मीनिंगफुल डिलीवर नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो क्या है, एक फुसफुसाहट है, उनकी जो आवाज है वो क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, वो कुछ भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। और फिर आगे जो है पोएट क्या करते हैं, ये जो मॉडर्न मेन की जो ड्राइड वॉइसेस हैं उसे कंपेयर करते हैं एज विंड इन ड्राई ग्रासेस और रैट्स फीट ओवर द ब्रोकन ग्लासेस इन द ड्राई सैंड। कहते हैं कि जहाँ पर जो घास सूख जाती है, जब घास सूख जाती है तो वहां पे क्या होती है, एक हवा पास होती है। जब हवाएं सूखी घास पे से चलती है तो कैसा साउंड देता है, घर खर 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 टाइप का साउंड देता है। वो कैसा साउंड होता है, वो एक बिल्कुल ही तकलीफ दे साउंड होता है, उससे खुशी नहीं होती है, वो साउंड से कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग साउंड होती है। फिर उस दूसरी जगह वो कंपेयर करते हैं, और रैट्स फीट ओवर द ब्रोकन ग्लासेस इन आवर ड्राई सेलर। जब एक तहखाने में, जब एक स्टोर रूम में क्या होता है कि जब ब्रोकन ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस टूट जाते हैं, तो उसके ऊपर से जब चूहे गुजरते हैं तो कैसी आवाज आती है, खर 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 की आवाज। और ये आवाज जो है कानों में क्या करती है, बहुत ज्यादा चुभती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि इसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मॉडर्न मेन है उनकी जो आवाज है वो किसकी तरह है, जस्ट लाइक इट इज एज डिस्टर्बिंग एज द विंड पासिस ऑन द ड्राई ग्रासेस, और एज a rat feet over the broken glasses in a dry cellar। इसी तरह की कुछ बातें जो है उन्होंने वेस्टलैंड में भी कहा है, जहां पर थर्ड पार्ट में फायर सरमन में वो कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सोल्जर्स मर गए थे उनकी हड्डियां गड्ढों में ऐसे ही गिरी रहती थी, और उनकी लाश जो है वो गड्ढों में ऐसे ही पड़ी रहती थी, कोई उनको उठाने वाला नहीं होता था, कोई उनको देखने। और उनमें जो है आवाज कब होती थी, जब चूहे उस पे से गुजरते थे, और वो आवाज कैसी होती थी, बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह आवाज होती थी, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता था, और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग वॉइस होती थी। कि इसी तरह की बात जो है यहाँ पे हॉलो मैन में भी वो कर रहे हैं। इससे ये बताना चाहते हैं कि जो हॉलो मैन है वो कुछ भी मीनिंगफुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ भी प्रोडक्टिव वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो जो भी कर रहे हैं वो सब का सब क्या है, नॉनसेंस है। नेक्स्ट लाइन, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, paralyzed forced gesture without action. These two lines are very important from the examination point, because these two lines expresses the attributes of the modern man। ये एलियट की बहुत बड़ी खासियत है कि he juxtapose two different words together and create a meaning। shape without form, जो मॉडर्न मैन है
उनका शेप तो है पर कोई फॉर्म नहीं है, शेड तो है पर कोई कलर नहीं है। इट मीन्स कि उनकी जिंदगी से जो रंग होता है ना वो खत्म हो गई है, उनकी जिंदगी एक रूटीन की तरह हो गई है, उनकी जिंदगी में जो खुशियां है वो कहीं गायब हो गई है। ठीक है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। पैरालाइज फोर्स मतलब क्या होता है, टू एक्ट समथिंग, लेकिन उनके जो फोर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं, वो कुछ भी जो है ठीक से कर नहीं पा रहे, उनकी गति जो है वो धीमी हो गई है। जेस्चर विदाउट मोशन, इज इट पॉसिबल दैट देयर इज अ जेस्चर विदाउट मोशन? जेस्चर विदाउट मोशन का मतलब है कि वो अपनी फीलिंग को, दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, वो रोना चाह रहे हैं, वो दर्द को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर पेन। वो खुशी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस। तो इसलिए जो है ये दो लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मॉडर्न मैन के एक्चुअल एट्रीब्यूट्स को बताती है कि वो कैसे हो गए हैं, वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो गए हैं, वो खाली हो गए हैं, वो बहुत ही बेकार हो गए हैं, हॉलो हो गए हैं। थर्ड पैराग्राफ, those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us as if at all, not as a lost violent soul. Those who have crossed, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो अच्छे लोग थे, जो इस दुनिया से चले गए हैं, विथ डायरेक्ट आइज, कहाँ चले गए हैं, गॉड के पास चले गए हैं, टू डेथ्स अदर किंगडम, वो कहाँ है, जो जन्नत में चले गए हैं। अगर वो लोग कभी हमें याद भी करते होंगे, ऐसे तो याद करते नहीं होंगे क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कुछ है नहीं याद करने जैसा, अगर वो हमें कभी याद करते भी होंगे तो कैसे याद करते होंगे, एक वायलेंट सोल के रूप में याद नहीं करते होंगे, ऐसा कोई सोल के रूप में याद नहीं करते होंगे कि जिसने कुछ जिंदगी में किया हो, बहुत आक्रामक हो, या उसको कुछ करने की चाहत हो, या कोई रास्ता भटक गया हो, उस रूप में हमें याद नहीं करते, बट ओनली एज द हॉलो मैन एंड द स्टफ मैन, बल्कि हमें याद करते हैं कैसे, एक हॉलो मैन और स्टफ मैन के रूप में, ऐसा आदमी जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन इमोशन, यानी कि ह्यूमन बीइंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स है सब खत्म हो गए हैं, और जो बिल्कुल ही क्या हो गया, बेकार है, नॉनसेंस है, उस रूप में क्या करते होंगे, हमें याद करते हैं। जो पहला सेक्शन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस फर्स्ट सेक्शन में जो है पोएट बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है विद द डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो है वो जो पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई थी, कल्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, और उसके बाद का जो जेनरेशन आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जेनरेशन आया था वो कैसी थी, उसके एक्चुअल पिक्चर को जो है इस पोएम के फर्स्ट सेक्शन में जो है पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। नाउ वी कम टू द सेकेंड सेक्शन, आइज, आई डियर नॉट मीट इन ड्रीम। आइज जो है ये सिंबलाइज करता है गॉड को, एक्चुअली गॉड के जजमेंट को ये सिंबलाइज करता है। तो पोएट जो है कहाँ है, अभी ड्रीम में है, सपने में है, और उस सपने में वो किसको देखता है, गॉड को देखता है, गॉड के जजमेंट को देखता है, और बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि ही इज ऑल्सो इन अ ग्रुप ऑफ अ हॉलो मैन, वो भी क्या है, एक हॉलो मैन में से एक है। जब वो गॉड की आइज को देखता है, गॉड की जजमेंट को देखता है, तो वो क्या करता है, सपने में बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि ही हैव टू गिव द ट्रू अकाउंट ऑफ। जब हमें इस दुनिया में जो है, जब मैंने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि गॉड हैज सेंट ह्यूमन बीइंग टू डू समथिंग, हमें उन्होंने एक टास्क दिया है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है हमें इस दुनिया में भेजा गया है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो हॉलो है और वो स्टफ्ड है, इसलिए वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। उसको पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे वो क्या कर सकेगा, गॉड को बता सकेगा कि वो इस दुनिया में क्यों आया था, उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, वो कुछ भी सही नहीं बता पाएगा। इसलिए जो यहाँ पर पोएट है वो बहुत ज्यादा डर गया है सपने में। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, इन डेथ्स ड्रीम किंगडम का मतलब यहाँ पर हेवन है। यहाँ पे आप पोएट किसकी बात करें, हेवन की बात करें। दीज डू नॉट अपीयर देयर द आईज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। अब जो है पोएट थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और वो किसको देखते हैं, जन्नत में देखते हैं, और कहते हैं कि वहां पे जो ब्रोकन कॉलम है वहां पे भी सनलाइट पड़ रहा है, वहां पे भी रोशनी पड़ रही है, वहां पे भी गॉड का प्रकाश पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर ये बात कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, वहां पे गॉड की रोशनी नहीं पड़ रही है क्योंकि लोगों के अंदर क्या हो गया, स्पिरिचुअल डेडनेस आ गया है, लोग जो है गॉड से अपना नाता पूरी तरीके से तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल
ही डार्कनेस है, लेकिन जो हेवन है वहाँ पे ब्रोकन कॉलम में भी क्या कर पा रही है, गॉड की रोशनी पहुंच पा रही है, वहाँ पे जो है सनलाइट पहुंच पा रहा है। There is a tree swinging and the voices are in the wind singing। कह रहा है कि वहाँ पे एक पेड़ है जो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, हवाओं में क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। And the voices in the wind singing। और जब हवाएं चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरी फिजा में क्या हो गया है, एक संगीत गूंज गया है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा जो है पोएट यहाँ पे प्रेजेंट करना की कोशिश कर रहा है हेवन का। और पोएट जो है यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, बट दूसरे ही क्षण more distant and more solemn than a fairy tale। उसे याद आ जाता है कि उसने क्या किया है, और कहता है कि ये सारी बातें, ये सारी चीजें, जन्नत के बारे में सोचना, उसका सपना देखना भी क्या है, एक हॉलो मैन के लिए टूटते हुए तारे से भी ज्यादा दूर और अकेली। पोएट यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डिस्पेयर हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और बिल्कुल ही यहाँ पे अटर डार्कनेस को वो रिप्रेजेंट करता है। Let me be no nearer death's dream। पोएट अब क्या करता है, डर जाता है और कहता है let me be। वो नहीं जाना चाहता है। कहाँ नहीं जाना चाहता है, वो गॉड के किंगडम में नहीं जाना चाहता है, वो गॉड से डर रहा है, वो गॉड के जजमेंट से डर रहा है। लेट मी ऑल्सो wear such deliberate and disguise। और वो छुपना चाहता है, किससे छुपना चाहता है, गॉड के जजमेंट से छुपना चाहता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसे क्या करेगा, गॉड जो है, गॉड का जो लव है, जो अफेक्शन है, उसे जो सैल्वेशन है, उसको कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, और वो कहता है लेट मी ऑल्सो वियर सच अ डेलिब्रेट डिस्गाइज रैट्स कोट क्रॉस स्किन एंड क्रॉस स्ट्रेज इन द फिल बिहेव एज अ विंड बिहेव। अब पुल बहुत ज्यादा डर गया है, और वो कहता है कि वो छुपना चाहता है, उन आंखों से छुपना चाहता है, उन जजमेंट की आंखों से छुपना चाहता है। और वो छुपने के लिए क्या करना चाहता है, रैट्स कोट और क्रो स्किन को क्या करना चाहता है, पहनना चाहता है। यहाँ पर रैट्स कोट और क्रो स्किन जो है वो डेथ और डिजीज को सिंबलाइज करते हैं। कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, और वो गॉड के सामने नहीं जाना चाहता है, वो छुपना चाहता है, वो अपने आप को छुपा लेना चाहता है। किसमें, रैट की स्किन पहनना चाहता है, क्रो की स्किन पहनना चाहता है, वो जो है स्केयर क्रो की तरह जो है वो बन जाना चाहता है। और जिस तरीके से जो है इसकी जो हवाएं जिस तरीके से इधर उधर होती है, हवाएं जिस तरीके से बिहेव करती है, हवाएं जिस तरह से चलती है, उस तरीके से वो क्या करना चाहता है, चलना चाहता है। वो गॉड के की नजरों से नजरें मिलाने की उसके अंदर क्या है, ताकत नहीं। यहाँ पर जो है अटर डिस्पेयर को बताया गया है। नॉट एट द फाइनल मीटिंग इन द ट्वेलाइट किंगडम। वो गॉड से नहीं मिलना चाहता, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो गॉड से नजरें मिला सके। नॉट इन द ट्वेलाइट में, इवन एट द एंड ऑफ द टाइम, जब ये दुनिया खत्म हो रही है। ट्वेलाइट किंगडम जो है यहाँ पे अंतिम समय को बता रहा है, लास्ट टाइम को बता रहा है, जब ये दुनिया खत्म, उस वक्त भी जो है वो गॉड से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि वो गॉड को बता पाएगा। वो जानता है कि गॉड ने जो है उसे क्या करने के लिए भेजा था, और उसने क्या कर दिया, वो गॉड को क्या बताएगा, क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए जो है वो अंतिम समय में भी क्या करना चाहता है, गॉड से छुपना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड सेक्शन खत्म हो जाता है। नाउ वी मूव टू द थर्ड सेक्शन। दिस इज द डेड लैंड, this is the cactus land। this, the poet has used this का मतलब है ये दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं। He's talking about the European civilization, he's talking about the European world after the first world war। कह रहा है कि ये दुनिया क्या हो गई है, बिल्कुल ही डेड हो गई है, बिल्कुल ही मरी हुई हो गई, ठीक है। और इसने चारों तरफ क्या फैला दिया, डेडनेस को फैला दिया, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट पे भी उसका असर आ चुका है। डेड लैंड जो है किसको बताता है, कल्चर को बताता है, डैमेज कल्चर और सिविलाइजेशन को बताता है। दिस इज द कैक्टस लैंड। ये जो है क्या है, बिल्कुल ही कैक्टस लैंड है। कैक्टस किसको सिंबलाइज करता है, कैक्टस भी जो है वो डेथ को सिंबलाइज करता है। कैक्टस वहां होता है जहां पर रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान कैक्टस वहां उगते हैं जहां पर पानी नहीं होता है। तो पानी का ना होना भी जो है डेथ को, हेल्पलेसनेस को और जो है सौरों को बताता है। तो कहता है कि ये दुनिया जहां पर हम रह रहे हैं वो क्या है, डेड है, मरी हुई दुनिया है। और ये क्या है, कैक्टस लैंड है। Here is the stone images as raised here the receive the supplication of the dead man's hand under the twilight kingdom। कह रहा है कि जो मॉडर्न मैन है, दे हैव फॉरगॉटन द रियल क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के जो रियल क्रिएटर है उसको भूल गए हैं। एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ओन गॉड फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, फॉर देयर ओन प्रॉफिट, एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, ठीक है। और कब उसकी वर्शिप करने लगे, अंडर द ट्विलाइट
अंडर द ट्विंकलिंग ऑफ द फेडिंग स्टार, डूबते हुए तारे की रोशनी में क्या करने लगे हैं, उस गॉड की वर्शिप करने लगे। और फिर दूसरे स्टैंजा में जो है वो पोएट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, इज इट लाइक दिस इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, क्या जन्नत में भी ऐसा ही होता होगा। पोएट सरप्राइज है। फिर वो दूसरे ही पल सोचता है, वॉकिंग अलोन at the hours when we are trembling and tenderness, lips that would kiss from the fears to the broken. कह रहा है कि जब हम अकेले हों और हमारे दिल में प्यार उमड़ रहा हो, जब हम किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हों, जब हमको किसी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा हो, जब हम किसी को प्यार करना चाह रहे हैं, एट दैट टाइम रादर देन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स आवर इमोशंस, वी इंडल्ज इन द प्रेयर्स टू द ब्रोकन स्टोन। हम क्या करने लगे हैं, ब्रोकन स्टोन्स के प्रेयर करने में लगे हुए, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। यहाँ पर जो है पोएट क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इमोशंस को बता रहे हैं कि जो मॉडर्न मैन है उनके अंदर से एक्सप्रेशन, जो अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कल्चर तो पहले ही खत्म हो चुका है, सिविलाइजेशन भी खत्म हो चुका है, स्पिरिचुअल डिके हो चुका है, और जो एक इमोशन बचा था वो भी अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जो मॉडर्न मैन है वो अंदर से पूरी तरीके से जो है खाली हो चुके हैं। द आईज आर नॉट हियर, देयर आर नो आईज। अब पोएट बहुत ही ज्यादा जो है अटर डिस्पेयर में, अटर डार्कनेस को बता रहे हैं। द आईज आर नॉट, जो आंखें हैं, जो जजमेंट की आंखें हैं, जो इंसाफ है, वो यहाँ नहीं। बिल्कुल ही जो है डार्कनेस हो चुका है, अंधकार आ चुका है, कुछ भी नहीं है। द आईज आर नॉट हियर, जो इंसाफ है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। देयर आर नो आईज हियर, यहाँ पर कोई भी आंखें नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंसाफ बिल्कुल ही नहीं बचा है। इन दिस वैली ऑफ द डाइंग स्टार, ये कैसी हो गई है, कैसी दुनिया हो गई है, ये ऐसी दुनिया हो गई है जहाँ पे अच्छे लोगों को क्या किया जा रहा है, सताया जा रहा है, जहाँ पे अच्छे लोगों को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और अच्छे लोग जो है यहाँ पे से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। दिस इज द हॉलो वैली, और ये दुनिया क्या हो गई है, खोखली हो गई है, बेमाने हो गई है, बेमकसद हो गई है। दिस इज द ब्रोकन जॉ ऑफ द लॉस्ट। और पोएट जो है अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन के लॉस्ट होने पे जो है अटर लेमेंट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा लेमेंट है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि ये वही इंग्लैंड है जब एलिजाबेथन एज में सर फिलिप सिडनी ने क्या किया था, उस वक्त जब वॉर चल रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया था, अपने दुश्मन को पानी दे दिया था और कहा था कि His need is more than mine। अभी इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। उन्होंने जो है अपने दुश्मन को पानी पिला करके ये साबित कर दिया कि सबसे ऊपर इंसानियत है। लेकिन आज का जो टाइम है, जो मॉडर्न टाइम है, उस टाइम में क्या हो गया, इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इंसाफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जो कल्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी है, एकदम डार्कनेस हो गया। अब एकदम बिल्कुल दुनिया खत्म होने पे है। In this last meeting place, we group together and avoid speech, gather on the beach of the geometry। अब बिल्कुल अंतिम समय है और लोग जो क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ये अंधे लोग, ये हॉलो मैन जो कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे, वो क्या कर रहे हैं, एक जगह गैदर हुए हैं। कहाँ गैदर हुए हैं, सोलन रिवर के पास जो है वो गैदर हुए हैं। Slightless unless the eyes reappear as the perpetual star। कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये अंधे लोग जिनके पास आंखें तो है पर रोशनी नहीं है, ये बहरे लोग जिनके पास कान तो हैं पर क्या करते, वो कुछ सुन नहीं सकते, जिनके पास जुबान तो है पर वो कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे लोग जो है क्या हुए, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, और उस वक्त तक ये अंधे, गूंगे, बहरे बने रहेंगे जब तक क्या होगा, गॉड जो है उनको सद्बुद्धि नहीं देंगे, गॉड जो है अपना जो इनलाइटमेंट उसको नहीं देंगे। उस वक्त तक क्या करेंगे, वो अंधे, बहरे, गूंगे बने रहेंगे। एज द परपेचुअल स्टार द मल्टी फॉलिएट रोज ऑफ द डेथ्स टू लाइट किंगडम, द होप ओनली ऑफ द एम्प्टी मैन। मल्टी फॉलिएट रोज जो है क्रिश्चियनिटी में वर्जिन मैरी का सिंबल होता है। अब कहता है कि बिल्कुल ही अंधकार समय है, बिल्कुल ही अंधेरा है, लोग अंधे बहरे और चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस, और ऐसे डार्कनेस में क्या है, सिर्फ मैरी वर्जिल जो है एक आखिरी उम्मीद बची है, एक आखिरी सहारा बचा है इन लोगों का, जो उनको क्या कर सकती है, सही रास्ता दिखा सकती है। एक आखिरी उम्मीद जो है ये बेकार लोगों का, ये जो हॉलो मैन है, ये जो डेड मैन है, इनका एक आखिरी उम्मीद जो है वो कौन बचा हुआ है, रोज बचा हुआ है। और ये रोज कौन है, ये रोज जो है सिंबल ऑफ मैरी वर्जिन है।
अब हम पोएम के लास्ट सेक्शन पे पहुंच जाते हैं। हियर वी गो राउंड द पिकली पेयर। पिकली पेयर क्या है? इज अ टाइप ऑफ अ कैक्टस है, और कैक्टस किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको बताया था कि डेथ को रिप्रेजेंट करता है। हियर वी गो राउंड द पिकली पेयर, पिकली पेयर, हियर वी गो राउंड द पिकली पेयर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये अंधे, ये बहरे, ये गूंगे लोग क्या हो रहे हैं? नाच रहे हैं चारों तरफ। किसके चारों तरफ नाच रहे हैं? पिकली पेयर के आसपास जो है वो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ये जो है उनके लॉस्ट ऑफ वे को बताता है। वो अपना रास्ता भटक चुके हैं, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, बस वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये जो पिकली पेयर है, इसके जो है बता रहा है कि वो कितना ज्यादा जो है सफर कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा जो है तकलीफ में है। एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे का वक्त है। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, इसके बीच में घूमते हैं आइडिया एंड द रियलिटी। जब हमारे दिमाग में किसी चीज का आइडिया आता है तो हम क्या करते हैं? उसको एक्चुअल एग्जिस्टेंस में लाते हैं। बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, जब हमारा जो है कोई डिजायर होता है तो हम उसको फुलफिलमेंट में लाने के लिए क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। फॉल्स द शैडो, आइडिया और रियलिटी के बीच में, मोशन और एक्ट के बीच में क्या हो जा रहा है? शैडो आ जा रहा है। और ये शैडो क्या है? ये फियर और डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। जो ये मॉडर्न मैन है अपने आइडिया को रियलिटी में नहीं बदल पा रहे हैं, अपने डिजायर का फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? फॉल्स द शैडो, एक शैडो है, एक शैडो है जो उनके बीच में आ जा रही है। एक डर है, एक डेथ का डर है जो उनके बीच में आ जा रहा है, जो उनको इस काम को करने से रोक रहा है। फिर एक तीसरी आवाज आती है, ये जो है लाइन, बाइबल की लाइन है, फॉर दाइन इज द किंगडम, ये साम्राज्य तुम्हारा है। बिटवीन द कॉन्सेप्शन एंड द क्रिएशन, जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, जब कोई कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बिटवीन द इमोशन एंड रिस्पॉन्स, जब हमारे दिल में किसी के लिए भावना आती है, जब प्यार आती है, जब नफरत आती है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। फॉल्स द शैडो, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें करने से रोक रही है। कौन रोक रही है? वही एक परछाई, फॉल्स द शैडो। लाइफ इज लॉन्ग, फिर ये वही आवाज आ रही है, फिर बाइबल की लाइन है, ये तीसरी कोई दूसरी आवाज जो है आ रही है, जो हमसे कह रही है लाइफ इज लॉन्ग। बिटवीन द डिजायर एंड द स्पास, जब हमारा कोई डिजायर होता है और जब हम उस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या होता है? जब हम कोशिश करते हैं, जब हम उस डिजायर का जो है एक्चुअल फुलफिलमेंट होता है, हमारा एक्चुअल ऑर्गेज्म होता है। बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एग्जिस्टेंस, जब किसी काम के को करने के अंदर जब हमारी ताकत होती है और उस ताकत से हम क्या करते हैं? उस काम को एग्जिस्टेंस में लाने के बीच में। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंस, इट मीन्स बिटवीन द आइडिया एंड द डिसअपॉइंटिंग डिले, जब किसी चीज में खुशबू रहती है और उस खुशबू के उतरने से पहले हम नहीं कर पा रहे। क्या क्यों नहीं कर पा रहे? फॉल्स द शैडो, एक परछाई आ जा रही। और फिर एक आवाज आती है, फॉर दाइन इज द किंगडम, ये साम्राज्य तुम्हारा है। जब पोएट ये इन बातों को, जब बाइबल की बातों को, जो बाइबल के लाइंस को जब पढ़ना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, अटर करना चाह रहा है, तो पैसेज बिगड़ जा रहा है, वो नहीं बोल पा रहा। फॉर दाइन इज, लाइफ इज, फॉर दाइन इज, पोएट क्या कर पा रहा है? नहीं बोल पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। और वो बोल क्या रहा है? फॉर दाइन इज, लाइफ इज, फॉर दाइन। यहाँ पर जो है पोएट ने क्या यूज किया है? यहाँ पर एलियट ने जो है ब्रोकन लाइंस को यूज किया है। ठीक है, ये ब्रोकन लाइंस जो है बता रहा है कि जो मॉडर्न मैन है उनके अंदर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल डीजेनरेशन हो चुका है कि वो गॉड से पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं, वो बाइबल से पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो इसलिए वो चाह के भी जो गॉड की जो बातें हैं उसको नहीं बोल पा रहे, इसलिए यहाँ पे जो है ब्रोकन लाइन का यूज है। फिर जो है ये आखिरी लाइन, ये 4 लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ द 20th सेंचुरी। और कहता है, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड इज। यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, और पोएट जो है बहुत ही ज्यादा लेमेंट में है, बहुत ज्यादा लेमेंट कर रहा है कि क्या कहता है कि इसी तरीके से दुनिया खत्म हो जाएगी, इसी तरीके से दुनिया खत्म हो जाएगी, इसी तरीके से दुनिया खत्म हो, नॉट विद अ बैंग, एक धमाके के साथ खत्म नहीं होगी, बट विद अ विम, बस ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आस्ते से खत्म हो जाएगी। दुख के साथ क्या हो जाएगी? दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पे पोएट ने एंटी क्लाइमेक्स का यूज किया है।
पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड है जो इसको ठीक कर सकते हैं, लोगों की आंखों में रोशनी डाल सकते हैं, लोगों को सुनने जैसा बना सकते हैं, लोगों को सच देखने जैसा बना सकते हैं, सच बोलने जैसा बना सकते हैं। लेकिन गॉड से इन्होंने नाता ऐसा तोड़ा है कि इनका अंत जो है बिल्कुल आवश्यकभावी हो गया है। तो इस पोएम के जरिए जो है पोएट ने जो है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन को बताने की कोशिश की है, उस डर को बताने की कोशिश की है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो एक महान सिविलाइजेशन था वो किस तरीके से खत्म हो गया है, और लोग जो है वो जो भले ही वो जो है ह्यूमन बीइंग जैसे दिख रहे हैं लेकिन उनके अंदर ह्यूमन बीइंग सारे एट्रीब्यूट से वो खत्म हो चुके हैं, वो अंदर से पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, और उनके अंदर सिर्फ बेकार की चीजें जो है वो भर चुकी हैं, और वो जो है उनका अब बिल्कुल पतन जो है वो क्या हो गया, आवश्यकभावी हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने अपनी तरफ से जो है इस पोएम को समझाने की बहुत कोशिश की है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो या क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।